السلام علیکم۔ چندئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں منگل کی رات اور جولائی کی 22 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور جولائی کی 23 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج ذکر کریں گے پاکستانی عدلیہ کی سیاہ تاریخ میں ایک نئے باب کا، جس پر یقیناً پاکستان بھر میں تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن میری یہ رائے ہے کہ اس پر ہر پاکستانی کا تبصرہ بنتا ہے، بلکہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس پر ضرور بات کرے۔ میں بھی اس پر ضرور کچھ اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ تھوڑا ذکر چین کا بھی کروں گا، جس نے کہ کمال کیا ہے، یعنی اس نے اپنی جو آئل ایڈکشن تھی، یعنی چین میں تیل کم پیدا ہوتے تو کس طریقے سے انہوں نے غیر ملکی تیل پر اپنا انحصار کم کیا، انہوں نے کیا کیا، اور کیا پاکستان ان سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور ساتھ تھوڑا ذکر صدر ٹرمپ کے ایک تازہ بیان کا بھی کریں گے۔ لیکن آج کے موضوعات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج کے موضوعات کی جانب بڑھنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا صدر ٹرمپ کے بالکل تازہ ترین بیان کا، جس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بھارتی قیادت کو آئینہ دکھایا ہے، ان 5 جہازوں کے حوالے سے جو کہ 7 اور 6-7 مئی کو شروع ہونے والی پاک بھارت جھڑپوں، جو 10 مئی کو ختم ہوئی، اس دوران پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ اور صدر ٹرمپ ایک مرتبہ پھر یہی فرما رہے ہیں انہوں نے پاکستان کا نام ایک مرتبہ پھر نہیں لیا، لیکن انہوں نے ان جھڑپوں کا ذکر کرتے ہوئے طیاروں کے گرائے جانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ We have stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you. جی ناظرین، تو آپ نے سنا صدر ٹرمپ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ 5 جہاز گرائے گئے، اور یہ کہ دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے، اور اگر وہ بیچ میں نہ آتے تو یہاں پر معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے دونوں ملکوں کو کہا کہ تجارتی معاملات بگڑیں گے اگر آپ نے سیز فائر کے لیے آپ تیار نہ ہوئے، آمادہ نہ ہوئے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو کہ آ، جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کے اس بیانیے کے بالکل مخالف ہے۔ اور یہ صدر ٹرمپ ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور جہازوں کے حوالے سے بھی یہ ان کا میرا خیال ہے کم از کم دوسرا یا تیسرا بیان ہے۔ جو صدر ٹرمپ کا حالیہ بیان ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ سب سے جو بہترین تجزیہ تھا وہ میں نے پروین سہنی، جو کہ بھارت کے ایک بہت زیادہ رسپیکٹڈ کمنٹیٹر ہیں، انہوں نے جو ایک ایکس پر ایک اپنے ٹویٹ میں کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ بنیادی طور پر پروین سہانی اپنے اس ایکس میں جو ان کا ٹویٹ ہے، ایکس پر جو ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، اس میں وہ لکھ رہے ہیں، جس کا میں اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جلد چین کا دورہ کریں گے، صدر شی جی پنگ کی دعوت پر۔ کیوں؟ کیونکہ چین کی قومی طاقت اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر ٹرمپ بھارت نہیں آئیں گے، لیکن بھارت کو شرمندہ کرتے رہیں گے، تجارت پر، برکس کی رکنیت پر، آپریشن سندور میں جنگ بندی پر، بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے نقصان پر، جنرل عاصم منیر کے ساتھ لنچ پر۔ اس معاملے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سہانی کہتے ہیں۔ کشمیر تنازع پر ثالثی کی پیشکش پر، روس کے ساتھ بھارت کی تجارت پر، وغیرہ۔ میکسیکو، برازیل، ایران جیسے خوددار ممالک نے ٹرمپ کو سخت جواب دیا، لیکن بھارت اس سب کو خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کرے گا، کیونکہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت کے لیے ایک عظیم خارجہ پالیسی تیار کی ہے، تاکہ 2047 تک اسے ایک ترقی یافتہ ملک، وکست بھارت بنایا جا سکے، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی اولین طاقت بنا رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جو کمزور قیادت سامنے آئی ہے اس پورے معاملے میں، اس کو میرا نہیں خیال کہ بھارت میں یا بھارت سے باہر بیٹھا کوئی بھی کمنٹیٹر اس سے اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے، جس طریقے سے کہ پروین سہانی صاحب نے بیان کی ہے۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ بھارتی قیادت کے لیے ایک بڑی امبیرسمنٹ ہے آج۔ دوسرا، پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس پر آپ کو سب کو معلوم ہے۔ میں اس پر اپنے کامنٹ کو ایک امریکی وہ تھے، پروفیسر تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، نوبیل پیس پرائز بھی انہوں نے 1986 میں جیتا تھا۔ ان کا نام تھا ایلیزر یا ایلا ویزل، اور یہ بیسیکلی ہولوکاسٹ سروائیور تھے۔
और 57 किताबें इन्होंने लिखी थी, 57। उन्होंने एक मर्तबा एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा था, जो बिल्कुल दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है और शायद हमेशा दुरुस्त रहेगा। उन्होंने कहा था कि देयर मे बी टाइम्स व्हेन वी आर पावरलेस टू प्रिवेंट इनजस्टिस, बट देयर मस्ट नेवर बी अ टाइम व्हेन वी फेल टू प्रोटेस्ट। यानी ऐसे औकात आ सकते हैं, ऐसा वक्त आ सकता है जब हम नाइंसाफी के को रोकने के काबिल ना हो, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए जब हम इसके खिलाफ आवाज न बुलंद कर पाए। लिहाजा मैं उनकी इसी कॉल से ये बात शुरू करता हूँ कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरें गुज़श्ता 48 घंटों से आ रही हैं, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों ही से, अब तो 2-3 सालों से ही चल रही है, लेकिन जो आज लाहौर और सरगोदा की अदालतों ने फैसले दिए हैं, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा बुरी खबर है। पीटीआई के लिए नहीं, ये बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जब एक मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाए तो क्या होता है, लोगों का न सिर्फ ये कि इंसाफ के इदारों में एतमाद खत्म हो जाता है, बल्कि रियासत में एतमाद खत्म हो जाता है। रियासत का सबसे बड़ा रखवाला कौन होता है? आइन होता है। आइन का सबसे बड़ा रखवाला कौन होता है? वो अदलिया होती है। अगर अदलिया बिक जाए, अगर अदलिया चंद कोड़ियों के एवज अपना जमीर बेच डाले, अगर जज लिखे लिखाए फैसले सुनाकर चंद अशखास को खुश करने में लग जाएं, तो आप समझ जाएं कि उस मुल्क का फ्यूचर, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके लिए ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है। तो आज जो ये दो जज साहिबान ने जो लिखी हुई तहरीरें पढ़ के सुनाई हैं, क्योंकि मैं आज सारा दिन कमेंट्री सुनता रहा, ज़ाहिर है सारे हम सब यही कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ख्वाहिश तो ये होती है कि हम ये सुने कि कहीं पे कोई नई चीज़ इजाद हुई है। ख्वाहिश ये होती है कि कुछ ये नजर आए कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ा पेपर लिखा गया है। लेकिन ऐसी खबरें हमें मिलती नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हमें यही मिलता है कि जज साहब के इन फैसलों पर आज मैं कम से कम दो वकीलों को कस्में खाते सुना कि वो कह रहे हैं कि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं, मैंने कई साल अपनी प्रैक्टिस की है, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ये किसी लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने ये फैसला लिखा हो। इस किस्म के फैसले, स्पेशली वो जो कि सरगोदा के जज ने लिखा है और वो जो कि लाहौर के जज ने लिखा है, वो कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा मालूम ही नहीं होता। और सरगोदा वाले जज का तो मामला और भी, वो क्या कहते हैं, वाजे है कि वहां पर जो इससे पहले जज है, जज अब्बास, उन्होंने तो बाकायदा कंप्लेंट की थी कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसीज प्रेशर कर रही हैं कि आप, यानी फैसलों पर असरअंदाज हो रहे थे वो। तो उसके बाद उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह ये नए जज साहब आए, और इन लोगों को जो मिला उन्होंने खूब धड़ल्ले से पढ़ के सुना दिया और तारीख में अपने स्याह हरूफ के साथ अपना नाम रकम कर दिया। क्योंकि जब भी पाकिस्तानी अदलिया पर तबर्रेबाजी होगी, जब भी पाकिस्तानी अदलिया को सियाह अल्फाज में याद किया जाएगा, और जब भी पाकिस्तानी अदलिया पर क्रिटिसिज्म होगा, यही वो जज होंगे जिनके ऊपर हमेशा क्रिटिसिज्म आएगा कि इन्होंने, इनकी जो भी मजबूरी थी, लेकिन इनका ज़मीर आज़ाद नहीं था। इनका, इनके अंदर दिल जो था वो शायद कहीं गिरवी रखा हुआ था। पाकिस्तान में रिवॉर्ड इसी किस्म के लोगों को किया जाता है कि जहां पर, जिन लोगों का ना जमीर हो, जमीर फरोश सबसे मजे में है पाकिस्तान में, सबसे मजे में। जितना गुनाहगार है, जितना बेईमान है, जितना जालिम है, जितना कातिल है, उतना ही वो ताकतवर है, उतना ही ये पाकिस्तान का निजाम उसको रिवॉर्ड करता है। ये आज एक मरतबा फिर साबित हो गया कि पुलिस वाले जो कि, यानी उनके बयानात में तजादात, जो सीसीटीवी के फुटेजेस हैं गायब, कोई बयान इस किस्म के हैं जो आपस में मुतजाद है, उनका तजाद है, उनके अंदर कोई एक यानी यकसानियत है ही नहीं। उसके बावजूद जिस तरीके से इन लोगों को सजा दी गई है, नाकाबिले फहम है। अगर पाकिस्तान की जो हायर जुडिशरी है, जहां पर भी हालात, लाइक बहुत अच्छे जजेस भी हैं वहां पर, लेकिन मसला यह है कि वहां पर जो काबिजीन हैं, वो वो हैं जो कि जाहिर है कि दे आर कॉलिंग द शॉट्स, और उसकी वजह से हमारी अदलिया का हुलिया बिगड़ गया है। तो उम्मीद है कि शायद वहां पर जो बाज़मीर जजेस बैठे हुए हैं इस वक्त भी, यकीनन वो पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे, यकीनन वो इन पाकिस्तानियों का दिफा करेंगे, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। यानी इसको छोड़ दें कि पीटीआई से या किससे हैं। आप सिर्फ केस की मेरिट्स पर देखें कि शवाहिद कहाँ हैं, और ये कि जो लोग गवाही दे रहे हैं ये कौन है। लेकिन बहरहाल, मेरी राय में ये एक इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। इसने पाकिस्तान की अदलिया को मजीद बदनाम किया है। इसने पाकिस्तान की अदलिया का जो इंटरनेशनल स्टेचर था,
जो पहले से काफी ज्यादा था। मेरा ख्याल है 134वां, ये 140वां नंबर था पाकिस्तान का, अभी इससे मजीद नीचे जाएगा। उसकी वजह यह है कि इन दो जज साहिबान ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान की अदलिया का मुंह मजीद काला किया है इस किस्म के फैसलों के साथ, जो कि जिस पर अफसोस होता है, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान का इदारा है, हमारा इदारा है, और उसके साथ ये सब कुछ हो तो यकीनन उस पर दिल खून के आंसू होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है। और मैं ये जो सेगमेंट है ये इस बात पर खत्म करूंगा कि मैं मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत बड़ा कॉल था। उन्होंने एक मरतबा कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी कहीं भी होने वाली नाइंसाफी हर जगह इंसाफ के लिए एक खतरा है। यानी ये नाइंसाफी जो हुई है, आप इस बात को भूल जाएं कि इन अशखास का ताल्लुक पीटीआई से था या किसी और से था। अगर यहाँ पर नाइंसाफी हुई है तो याद रखिए कि इंसाफ पूरे मुल्क में खतरे में है। इसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, ये जहन से निकाल लें। इसका ताल्लुक आपसे, मुझसे, सबसे है। लिहाजा अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और इसके खिलाफ कम से कम अपनी आवाज़ उठाकर ये नहीं कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है, तो मेरा ख्याल है कि हम खुद भी इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती करेंगे अगर हम इस पर कम से कम अपनी आवाज़ ना बुलंद करें। तो यकीनन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक फैसला है। अब चलते हैं अपने आखिरी मौजू की जानिब। मैं यानी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वैसे तो आप देखिए कि जो एक वाइबल स्टेट है उसके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी। और वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि अगर पानी होगा तो फूड सिक्योरिटी आएगी, अगर पानी नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, अनाज कहाँ से पैदा होगा। और इसी तरह अगर आपके पास तवानाई के वसाइल होंगे तो आप कारखाने चला सकेंगे और आप अपने ट्रैक्टर भी चला सकेंगे, तो इसका भी ताल्लुक बरह रास्त आपकी जो फूड सिक्योरिटी उसी से बनता है आखिर में। पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लिए इसमें यानी इस हद तक मजबूत हो जाए कि वो किसी के मोहताज ना रहे। चीन की मिसाल में इसलिए मैंने देख रहा था कि गुज़श्ता 2-3 दिनों में यहाँ पर अमरीकी अखबारात में उस पर कुछ बहुत अच्छे मजामीन छपे हैं। और एक मजमून में पढ़ रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया है वो, और वो कहते हैं कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों में, तकरीबन 3 दिहाइयों तक चीन जो है वो दुनिया में तेल की तलब का सबसे बड़ा इंजन था, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल ये इंपोर्ट करता था। ये इसको लत लगी हुई थी, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है तो उनकी कंजम्पशन भी ज्यादा थी। और ये अब ख्याल ये है कि जो इस वक्त हुकूमती पॉलिसीज हैं, तो कह रहे हैं कि 2027 तक तेल की तलब में इजाफा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर कम होना शुरू हो जाएगी। चीन को खदशा सबसे बड़ा क्यों है, जो चीन चीन ने जो कुछ किया है, जो आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। चीन को खदशा यह है कि अगर अमेरिका ने तेल की सप्लाई रोक दी तो चीन की जो इकोनॉमी है उसमें 17% तक सिकुड़ाव आ सकता है, कंट्रैक्शन हो सकती है, कम हो सकती है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका यानी सिंगापुर के साथ जो पानी की आबी गुजरगाह है, वहां से चीन का तेल टैंकर उसी रास्ते से आते हैं। तो चीन को यह खौफ है कि अगर अमेरिका उस जगह पर किसी भी जंगी हालत में उसको बंद कर दे तो चीन में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो इससे बड़ा मसला पैदा होगा। तो चीन ने क्या किया कि चीन ने कहा कि जी हम अपने लिए रास्ता ही तब्दील कर देते हैं, यानी हम अपनी तेल की कंजम्पशन ही कम कर देते हैं। तेल की कंजम्पशन कम करने के लिए जब शी जिनपिंग आए तो उन्होंने दो काम किए। एक तो उन्होंने ये किया कि चीन को कहा, यानी चीन को जो पेट्रो चाइना जो चीन की और नेशनल ऑयल कंपनी है, उनको कहा कि आप पूरे मुल्क में जितनी ज्यादा तेजी से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं करें। तो उन्होंने जो लास्ट ईयर, यानी इतना पैसा वो लगा रहे हैं एक्सप्लोरेशन पर कि गुजश्ता साल उन्होंने सिर्फ एक्सप्लोरेशन पर 38 अरब डॉलर लगाए, जो कि जो बजट है लगाने का, यानी जो एक्सप्लोरेशन पे जितना पैसा लगाती हैं कंपनियां, तो एक्सन मोबिल और शेवरॉन, ये दो दुनिया की बहुत बड़ी तेल की कंपनी हैं, इन दोनों का सालाना बजट जितना है ना एक्सप्लोरेशन पे, उन दोनों का मिलाकर चीन के बराबर है। तो चीन ने इतना ज्यादा पैसा लगाया, और उसके नतीजे में अब वो तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा बैरल पर डे अपना तेल पैदा कर रहे हैं। तो अब वो 70% जो वो है बाहर से मंगवा रहे हैं। और 11 मिलियन बैरल जो है वो चीनी कंपनियां इस वक्त भी तकरीबन डेली इंपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वो तेल निकाल रहे हैं वो भी हैरान कुन है। मसलन उन्होंने एक जगह पर जो एक्सप्लोरेशन किए तो वहां पर तेल का कुआं 7 मील गहरा है, 7 मील गहरा, शायद दुनिया का सबसे गहरा कुआं होगा तेल का, जहां से कि वो तेल निकाल रहे हैं। और चीन के अभी जो
प्रोजेक्शन आ रही हैं वो ये हैं कि चीन अब आने वाले कम से कम 2-3 सालों में उनकी जो खपत है, यानी जितनी उनकी डिमांड है, उसमें कमी आएगी और 1 बिलियन बैरल तक कमी आएगी। तो इसीलिए दो ममालिक बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि चीन की मार्केट उनके हाथ से ना जाए। जब तक चाइना पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट कर रहा है तो उनसे वो खरीदे। एक सऊदी अरब है और दूसरा रशिया है। रशिया चीन को डिस्काउंटेड कीमत पर तेल बेच रहा है, यानी उसको कम कीमत पर तेल बेच रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत पर वो बेच रहा है। और साथ ही दूसरा सऊदी अरब क्या कर रहा है कि सऊदी अरब वहां पर उनकी ऑयल रिफाइनरीज में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि सऊदी तेल ही वहां पर रिफाइन हो सके। तो वो अपनी मार्केट इस तरीके से फैला रहे हैं वहां पर, और ताकि वो मार्केट उनके हाथ से ना जाए। दूसरा, जी जिनपिंग की जो विजन थी, उन्होंने कहा जी कि आप फौरन ऐसे मुतबादिल दराए निकालें कि जिससे हमारी तेल की खपत कम हो जाए, यानी हम तेल इस्तेमाल कम करें। तो एक तो खुद किफालत थी, यानी 2018 से 24 के दौरान चीन ने अपनी जो कौमी तेल की पैदावार है उसमें कोई 13% ज्यादा इजाफा किया है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। और साथ ही चाइना ने जो सबसे बड़ा काम किया वो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया। यानी शी जिनपिंग ने अपने मुल्क में बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए कंपनियों को कि आप आए और गाड़ियां बनाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएं। और ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएं कि जहां पर हमारा इंटरनेट जो फॉरेन ऑयल पर रिलायंस है वो कम हो। और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स भी दिए। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि कोई 400 से ज्यादा कंपनियां बनाई गई, 400 से ज्यादा, जो कि गाड़ियां बना रही थी। कौन सी गाड़ियां? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उनमें से बहुत सारी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो बंद भी हो गई। और हुकूमत ने इनिशियली इसमें कोई 100 अरब डॉलर डाले। और उसके नतीजे में, यानी जो फर्स्ट टाइम चाइना में जो गाड़ियां आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो 2019 में टेस्ला अपनी जो उनने अपनी शंघाई में फैक्ट्री खोली थी, तो उसके बाद चीनी सार्फिन को जो है पहली मर्तबा टेस्ला जैसी गाड़ियां नजर आई। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है इसको अडॉप्ट किया। लेकिन साथ चीन में इतनी ज्यादा गाड़ियां बन गई कि चाइना ने दो काम किए। एक तो ये कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो ऑटोमेशन इतनी ज्यादा कर दी, चीन में जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी चीन में एक और गाड़ी है, मेरा ख्याल है जीकर नाम है उसका, वो उन्होंने अपना पूरा कारखाने ही जो है वो रोबोट्स चलाते हैं। उन्होंने कोई 800 रोबोट्स चलाए हुए हैं, और वो रोबोट जो है वो सारा काम उनके लिए करके देते हैं, गाड़ियां उनके लिए तैयार बनती हैं। और चाइना ने न सिर्फ ये बल्कि जो बैटरी टेक्नोलॉजी में वो आगे गए हैं, तो उनकी जो बनाई हुई गाड़ियां हैं वो इस वक्त ऐसी भी हैं जो कि 400 से 500 मील एक चार्ज पर चलती हैं। लेकिन यहाँ ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका में भी जो टेस्ला की जो अच्छी गाड़ियां हैं वो भी कोई 350 360 मील तक जाती हैं। जो असल बात है वो ये है कि जो चार्जिंग स्पीड है, चाइना की जो वो है BYD और दूसरी कंपनियां जो हैं, उन्होंने ऐसी बैटरीज बनाई हैं जो कि सिर्फ 5 मिनट में चार्ज होती हैं। यानी जितनी देर में आप अपनी गाड़ी का टैंक फिल करते हैं उतनी देर में वो गाड़ी चार्ज हो जाती है, और वो कई 100 मील तक चलती है। तो एक तो उन्होंने ये किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्जिंग स्टेशन का एक पूरे मुल्क में जाल फैला दिया। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन चाइना में है। चाइना में इस वक्त आधी से ज्यादा, लास्ट ईयर जितनी गाड़ियां बिकी हैं, तो वो तकरीबन टोटल उनका आधा जो था, 50% जो थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। जबकि 4-5 साल पहले सिर्फ 6% गाड़ियां जो पूरे साल में बिकी थी वो इलेक्ट्रिक थी, अब आधी हैं। और जितनी भी उनकी बसेस वगैरह सारी इलेक्ट्रिक हो गई हैं। और जो चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है चाइना में इस वक्त, वो 14 मिलियन है। 1 करोड़ 40 लाख चार्जिंग स्टेशन है। इसीलिए तो मसला नहीं है, आप गाड़ी रख सकते हैं। पाकिस्तान में चूंकि है नहीं, मैं अभी इस पर बात हूँ कि पाकिस्तान से क्या यानी कुछ सीख सकता है कि नहीं। और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है अभी, वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बना हुआ है। इनोवेशन में वो सबसे आगे है। उनकी गाड़ियां अगर जहां भी जाती हैं तो अपने लिए जगह बना लेती हैं। सेंट्रल एशिया में आप जाएं, मार्केट उन्होंने पकड़ी हुई है। आप इधर साउथ अमेरिका में आए, मार्केट उन्होंने पकड़ी हुई है। यहाँ मैक्सिको में उन्होंने अपना कारखाना लगाया हुआ है। ब्राजील में भी BYD ने कारखाना लगाया है, मैक्सिको में BYD ने कारखाना लगाया है। तो वो हर तरफ फैल गए हैं। यूरोप में गर्चे उन पर पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी स्वीडन जैसे ममालिक में उनकी काफी प्रेजेंस है, और वो वहां पर भी आ रहे हैं। और अभी हंगरी में भी BYD मेरा ख्याल अपना एक कारखाना लगा रही है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि चाइना ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि वो कहते हैं कि जी एक वक्त ऐसा आएगा कि चाइना को फॉरेन ऑयल की बिल्कुल जरूरत रहेगी नहीं। और अगर रहेगी तो चीन अपना तेल इतना पैदा कर रहा होगा कि उनको बाहर की जरूरत ही नहीं होगी। और यही जो खुददार कौमें होती हैं, जिनका फ्यूचर होता है, वो यही करती हैं कि वो अपने 3 एरियाज पर फोकस करती हैं,
تو जो ऐसे ऐसे ममालिक जो लॉन्ग टर्म अपनी कामयाबी देखना चाहते हैं, तो उनको इन्हीं तीन एरिया को मजबूत करना होता है कि वो खुराक में खुद कफील हो, तवानाई में खुद कफील हो, और पानी में खुद कफील हो। पाकिस्तान यहाँ पर कहाँ खड़ा है, खुद ही आप जायजा ले लें, कल मैंने इस पर एक शो भी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। लेकिन पाकिस्तान चीन से सीख जरूर सकता है। पाकिस्तान में भी अभी BYD और दूसरी गाड़ियां आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, EV चार्जिंग स्टेशन जो हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ख्याल है बहुत तेजी से फैलाना चाहिए। इससे पाकिस्तान की जो पावर कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी। जो हमारे जो IPPs के मसाइल हैं वो भी काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं, अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना फैला दें कि उसी IPPs की एनर्जी ही को इस्तेमाल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर उस बिजली की खपत भी होगी, और पाकिस्तान के लिए मसाइल काफी कम भी हो सकते हैं, और इसका अपनी जो इम्पोर्ट बिल है पाकिस्तान का ऑयल का, वो भी काफी कम हो सकते हैं। तो पाकिस्तान चीन से बहुत कुछ सीख सकता है, सीखना चाहिए। अगर नहीं सीख रहा तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।